Good morning, students. Today we are going to discuss the different methods, different ways through which we can express the experimental data and theoretical data of chemistry in convenient and meaningful ways up to the extent possible here. Students, in this sequence we first take here scientific notation of the data. In what way we can express the data, either theoretical or experimental, in scientific way. Students, in order to understand the method by which you can convert the raw data into scientific way, let us understand what is the meaning of the scientific data. Students, if the data either theoretical or experimental is of the form k into 10 raised to the power n, where k is a number which is more than 1 but should be less than 10. It should be either more than or equal to 1 but should always be less than 10, and n is an integer. It may be positive or negative. Positive integer or negative integer. And this is the condition for the value of k. If data expressed in the form of k into 10 raised to the power n under the condition of these two conditions of n and k, definitely that should be called as the data in scientific notation. So students, in chemistry as well as in physics, we come across the different data which either have very high value or have very low value. Especially in chemistry, we come across these two type of data. Students, let us consider the data which have very large value. For the example, let us consider the speed of light. Students, speed of light can be written as this meter per second. That should be called as the speed of light. स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा डेटा है. इट इज़ वेरी लार्ज डेटा. सो इट्स एक्सप्रेशन इज inconvenient to write here. That is why, in order to convert this into
convenient way of writing, we have to convert this into scientific notation. In order to convert this data in scientific notation, we first have to find out the value of k corresponding to the given data. अगर आपको ऐसा करना है कि वैल्यू आपको डिसाइड करनी है, तो यू हैव टू शिफ्ट योर डेसिमल पॉइंट, प्लेस द राइट मोस्ट कॉर्नर टू द लेफ्ट वन, जस्ट बिफोर टू दिस पॉइंट हियर. तो अगर आप ऐसा देखो तो आप यहां से शिफ्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8. आपने 8 प्लेस तक इसको शिफ्ट किया. ऑन शिफ्टिंग द पॉइंट प्रेजेंट इन द राइट मोस्ट जस्ट बिफोर 3, जो आपने प्लेसेस जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में जितने प्लेस आपने शिफ्ट किया है वो टोटल 8 प्लेसेस हैं. तो जितने प्लेस आप राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुए हो, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ n हियर. अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर k की वैल्यू फाइंड करते हो, तो नो डाउट इस केस में k वैल्यू पॉजिटिव, जो n वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी. मतलब n शुड हैव द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हियर. और जब आपने शिफ्ट कर लिया तो यहाँ k की वैल्यू कितनी मिल गई? 3.0 मिल गई. और n की वैल्यू आपको जो मिले, दिस इज पॉजिटिव 8 मिल गई. आप क्या करो, इसी वैल्यू को ले जाकर के आप यहाँ पे पुट कर दो. तो नो डाउट आप कहेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको अगर इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखा जाएगा तो दैट शुड रिटन एज 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Students, likewise, let you have another data. That it is 4326.34 gram. Let it the mass here, or let it kilogram. Let it is kilogram. Again, to write this data, this mass in convenient way, we have to convert this data into scientific notation. Again, in order to convert this into scientific notation, we have to decide the value of k, and in order to find out the value of k, we have to shift the decimal point from right to left, just before 4 here. Means you have to shift your decimal from this to this one here, from right to left up to this point here. When you shift the decimal up to this point, you get k as 4.32634. That is the value of k. और ऑलरेडी आपको मैं बता रखा हूं कि जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो n की वैल्यू जो मिलेगी, जितने प्लेसेस आपने शिफ्ट किए बेटे, वो वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो नो डाउट आपने 3 प्लेसेस आपने शिफ्ट किए डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ. यू गेट हियर n इज इक्वल टू 3. सो साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 4326.34 किलोग्राम कैन बी रिटन एज 4.32634 into 10⁻³ kilogram. Students, likewise, let us consider a very small data. Let we have the data 0.0043265, that is centimeter. Let we have this is the centimeter here. Students, if you observe this data,
you find that this data is very small in comparison to the value of 1 here. It is very small. So in order to convert this into scientific notation, we have to shift decimal from left to right. लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना है और ले जाकर के इतना ले जाना है कि इसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में आ जाए. जब आप यहां ले जाओगे, अगेन यू हैव स्मॉल वैल्यू, यहां तक ले जाओगे तो भी छोटी रहेगी 1 से, बट यहां जब आप ले जाओगे तो दिस वैल्यू सो ऑब्टेन लाइज बिटवीन 1 and 10. So no doubt, according to the condition, we have k value should be 4.3265 your centimeter. और इसको करने में आपने क्या किया है, जो डेसिमल प्लेसेस आपने शिफ्ट किए हैं, आपने 3 प्लेस शिफ्ट किया है. अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करोगे डेसिमल को in order to obtain the value of k, definitely the n value should be always be negative here. So no doubt यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, -3. So no doubt the scientific notation corresponding to this data is 4.3265 into 10⁻³ centimeter. Students, likewise you can take another very large value as well as the small value in order to explore this idea here of scientific notation. Now students, after this concept of scientific notation, let us consider another important concept that is known as concept of significant figure. Students, in order to understand the concept of significant figure, let us take a simple example of length measurement. Students, that is mass measurement. Students, let us consider the simple balance and the analytical balance. You have to measure the mass of an object to the simple balance and same mass with the analytical balance. When you measure the mass of the object through the simple balance, mass comes out to be 4.9 gram. जो आप लोग जनरल मास मेजरमेंट में जो बैलेंस यूज करते हो, उसके थ्रू ऑब्जेक्ट की आपने वेइंग करी तो उसमें जो उसका मास मिला दैट फाउंड टू बी 4.9 ग्राम. बट इसी को जब एनालिटिकल बैलेंस से आपने किया तो 4.9324 ग्राम आपको मिला. नो डाउट आप ये कहोगे कि द मास measured through the analytical balance is more accurate than the mass measured through the simple balance. Students, likewise in chemistry and in physics we come across the different measurements which are associated with the certain degree of uncertainty. उसमें एरर्स होती हैं. जो आपने मेजरमेंट किया है that always consists of certain extent of uncertainty. और ये जो uncertainty है ये इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है. स्टूडेंट्स की इंस्ट्रूमेंट
की एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है, और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी उस एक्सपेरिमेंट करने की जो स्किल है उस पर भी डिपेंड करती है. बट इन ऑल द केसेस द मेजरमेंट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. If the data always consists of certain degree of uncertainty, then in order to express the data in meaningful way, we have to report कि the data expressed has how many data expressed has certain up to which extent and are uncertain up to which extent. So in order to express this in meaningful way, we have to write the number up to which the data is accurate plus one place of the data which is inaccurate, that is which have error. For example, if you observe these two observations, definitely you can say here 4 is accurate. It is measured with higher degree of accuracy. आप देख सकते हो डेसिमल का लेफ्ट का जो प्लेस 4 है ये दोनों में सेम है, मतलब बोथ द इंस्ट्रूमेंट हैव मेजर्ड द 4 एक्यूरेटली, बट डेसिमल के राइट प्लेस वाला जो डेटा है इसमें ये 9 जो है लिखा हुआ है, दिस इज अनएक्यूरेट. इट्स वैल्यू में लाइज बिटवीन 8 and 10. It may be 8, it may be 10. It may be 8, it may be 5, it may be 4.8 और it may be 5 here. मतलब 9 inaccurate है, ये uncertain है. Likewise, अगर आप इसको देखो, इसको चेक करो, इस डेटा का जो 4.932, it is certain. It is measured with the 100% certainty, but 4 जो measure किया गया है, again it may be 3, it may be 5. This place, this 4th place have uncertainty. So no doubt it means in the given observation taken by simple balance, one place is certain and other is uncertain. Means certain place और एक जो uncertain है उसको जो जोड़ देंगे तो जो नंबर मिलेगी 2. तो sum of the certain places मतलब places of the observation which is measured with the 100% certainty plus one which is uncertain, इनका जो sum होगा that should be called as the significant figure of the given data. तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोग कहेंगे कि ये जो डेटा है जिसको सिंपल बैलेंस से हमने लिया हुआ है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं दीज आर 2 हियर. लाइकवाइज अभी आप बता रहे थे हमको कि इसमें जो है 4 और ये 932 ये जो हैं दीज आर द सर्टेन डिजिट, मतलब 4 डिजिट इसमें कैसी हैं, सर्टेन है. प्लस दिस डेटा ऑल्सो कंटेन्स एन अनसर्टेन डिजिट.
तो +1 और कर दो, तो डेफिनेटली वी हैव, तो आप कहेंगे डेफिनेटली दो सेकंड जो एनालिटिकल बैलेंस से हमने जो लिया है डेटा, दैट हैज़ 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट्स, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कह सकते हैं इट इज सम ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स which is certain plus 1 which is uncertain. So that sum should be called as number of significant figure present in given data here. Students, in order to write the number of significant figure present in the given data in simple way, there are some empirical rules which can be used to decide the number of significant figure present in the given data. Students, the one of the primary rule is कि in a data all the zeros, non-zeros number, all the non-zeros number digits are said to be significant figure or should be considered as the significant figure. For example, अगर आपने ये लिया 4.943, तो आप देखो यहाँ पर सारी जितनी डिजिट हैं सारी की सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी, इनको हम लोग कहते हैं ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। लाइकवाइज वी हैव द सेकेंड रूल। दिस सेकेंड रूल स्टेट्स दैट all the zeros before a non-zero number are considered as non-significant figures. For example, we have 0.000239 students। तो देखो 2 के पहले ये 3 zeros आई हुई है, तो 2 is the first non-zero number, नॉन ज़ीरो डिजिट, और इसके पहले जो तीनों आपके ज़ीरोज़ आई हुई हैं डेफिनेटली एज पर रूल दीज आर कंसिडर्ड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोलोगे कि हमारे डेटा में जो सिग्निफिकेंट फिगर आई है वो केवल कितनी है, 3 है। लाइकवाइज the zeros present between the two non-zero number, two non-zero digits, always considered as significant figures. Students, अगर आप काउंट करिए यहाँ तो देखिए these are the two zeros which lie between 4 and 2. So as per rule आप कहोगे कि 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दोनों ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर और 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप कह सकते हो कि जितनी भी यहाँ पर डिजिट्स आई हुई हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो नो डाउट आप कहोगे दैट डेटा शुड हैव द 5 सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट्स, द काउंटिंग नंबर्स लाइक जो आप नेचुरल नंबर बोलते हो 1 2 3 4, जब जिसकी काउंटिंग में आप यूज करते हो, जैसे किसी आर्टिकल को आपने काउंट करना है, पता है जब आर्टिकल को आप काउंट करते हो तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, इसमें एरर के चांस 0 हैं। तो अगर जब आप काउंटिंग करते हो और एरर का चांस वहाँ पे 0 होता है, तो
ऐसी सिचुएशन में उस नंबर को, जैसे मान लो आपने 4 लिखा, किसी चीज़ की काउंटिंग करी 4, तो 4 के आगे आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस को आप बढ़ा सकते हो। तो आप कहते हो कि जो नंबर जो टर्मिनेटिंग जीरोस होते हैं राइट में, किसी नंबर के आगे जितने जीरोस होंगे वो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ऑल द जीरोस आफ्टर ए नंबर आफ्टर ए नॉन जीरो नंबर। तो पहली बात तो ये है कि नंबर आपकी टर्मिनेटिंग जीरो पर टर्मिनेटिंग हो, मतलब जीरो पर ख़त्म हो, तो नॉन जीरो डिजिट के आगे जितने सारे जीरोस होंगे ऑल आर कंसीडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने लिखा है 4.3200। स्टूडेंट्स, अगर आप उसको इस फॉर्म में लिखते हो तो नो डाउट आप कहेंगे इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द वे इन विच यू राइट द डेटा 4.32, तो नो डाउट आप कहेंगे कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। लाइकवाइज काउंटिंग जब आप करते हो, जैसे आपने किसी की काउंटिंग करी 5, तो 5 को आप डेसिमल प्लेस करके इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस के आगे लिख सकते हो। सो ऐसी सिचुएशन में पक्का है आप यहाँ पर क्या करोगे, आप कहोगे कि जो काउंटिंग नंबर्स होती हैं इनमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं दैट मस्ट बी इनफाइनाइट हियर। सो स्टूडेंट्स, एक एक करके बात को समझो। तो सिग्निफिकेंट फिगर कुछ और नहीं है, ये वो डिजिट हैं जो किसी डेटा में सर्टेनिटी के साथ मेजर की जाती हैं प्लस विच इज़ अनसर्टेन। तो सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट का जो सम होता है उसी को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो अगर आप इन सारी जो रूल्स हमने एम्पेरिकल रूल्स आपको सजेस्ट किए हैं, तो थ्रू द यूज ऑफ ऑल दीज रूल्स यू कैन एग्जैक्टली डिटरमिन कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट द गिवन डेटा। स्टूडेंट्स, now we have another very important concept which is used to write the data in meaningful way is called as approximation। approximation के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। किसी डेटा को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए, इसको एक्यूरेटली इसके मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। हमको करना क्या होता है, अपने डेटा से कुछ डिजिट को रिमूव करना पड़ता है, सर्टेन प्लेस तक उस डेटा को, उसकी डिजिट को रिटेन करना पड़ता है, बाकी वहाँ की डिजिट को हटाना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है उसी को हम अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द डेटा is dealt with the 3 different simple rules, can be dealt with the 3 simple rules. 1, let we have the data 4.97 स्टूडेंट्स, हमको करना क्या है, इस डेटा को डेसिमल के सेकंड पॉइंट तक इसको अप्रॉक्सीमेशन करना है। इसको अप्रॉक्सीमेशन करने का मतलब ये हुआ कि हमको ये जो 8 है इसको यहाँ से रिमूव करना है। अगर इसको यहाँ रिमूव करना है तो हो सकता है इसके रिमूवल के थ्रू इसकी जो प्रीवियस डिजिट है वो अफेक्ट हो सकता है इसकी प्रीवियस डिजिट अफेक्ट ना हो।
तो ये इफेक्ट हो या ना हो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो डिजिट इसके जिस प्लेस तक इसको अप्रॉक्सीमेशन करना है उसकी जो नेक्स्ट डिजिट है उसके राइट में उसकी वैल्यू कैसी है। स्टूडेंट्स, अगर जिस डिजिट तक आपको डेटा को अप्रॉक्सीमेट करना है, अप्रॉक्सीमेशन करना है, उसके राइट में जो लाइंग डिजिट है, if its value is more than 7, 1 should be added to the digit before this digit here। मतलब अगर आपको इसको हटाना है तो देखना है कि ये वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, इसको तभी आप हटा सकते हो जबकि आप इसमें 1 आप जोड़ दोगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या मिल जाएगा, यू हैव 4.98। तो कहेंगे दिस इज द रिजल्ट obtained after the approximation of the above data up to the second decimal place here. Likewise, let we have a result 3.273 and we have to approximate this data up to second place of decimal here. Again, we should take the digit after this 7 here, present at the right to the 7 here. Students, ये जो 3 है, this is less than 5. If this is less than 5, तो जब आप अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो आप 7 में कुछ नहीं ऐड करोगे। मतलब इसका जो अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्म आएगा वो आएगा 3.27। मतलब जिस डिजिट को आपको जिस प्लेस तक इसको अप्रॉक्सीमेट करना है उसके राइट में लाइंग डिजिट जो होगी, इफ इट्स वैल्यू इज लेस देन 5, देयर इज नो चेंज बेटे इन द डिजिट। Likewise, let us consider another data 3.4375 and you have to approximate the data up to third place of decimal here। मतलब आपको फोर्थ वाले डिजिट को रिमूव करना है। स्टूडेंट, जब आपको फोर्थ वाले डिजिट को रिमूव करना है तो फर्दर आप चेक करोगे कि इसकी जो फोर्थ डिजिट है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर ये 5 होगी, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, अगर ये 5 हो और इसके पहले की जो डिजिट है वो ऑड हो तो आप कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपली हैव टू रिमूव द फोर्थ डिजिट and write the result in this way here 3.437। तो आप कहेंगे ये इसका अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्म हो गया। लेकिन अगर ये 7 की जगह 6 होता तब आप क्या करते, और 4 डिजिट आपकी 5 होती तो आपको क्या करना पड़ता, जब इसको आप रिमूव करते तो यहाँ आप क्या करते, 6 में 1 ऐड कर देते। तब आप क्या लिखते, द डेटा शुड बी एक्सप्रेस दिस इज 3.437। That should be the approximated form of the given data. So students, today you have learned about how to write the scientific notation corresponding to the given data. Second, how can we decide the significant figure present in the given data, and lastly how can make the approximation of given data. With this concept you can express the result, express the raw data in the meaningful way. In next lecture we will use the use of these concepts
in order to express the sum, difference, multiplication and division of data in meaningful way. Thank you.